Hello students. As you know that we are doing chapter 2 linear equations in class 8 and we have completed till exercise 2.3. So let's continue exercise 2.4. It is again an exercise having problem sums. So question 1 says Amina thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? We'll keep reading one sentence and we'll do it stepwise what all it is saying. First of all, Amina thinks of a number, so let the number to be x. Then what he said, subtract 5 by 2 from it. So we have subtracted 5 by 2 from x. Then he says she multiplies the result by 8. As it said that it's the result, so we will keep it in a bracket because this bracket will give the result of x minus 5 by 2 because we cannot solve it as of now, and it has to be multiplied by 8 means this whole result, this whole bracket will be multiplied by 8. Now he said the result now obtained, जो ये माइनस करने पर और उसको मल्टीप्लाई करने पर जो आया, that is 3 times the same number she thought of. वो इक्वल है 3 times the number she thought of means 3 multiplied by x, that is 3x. So this is your equation form. Now, as you have practiced solving equations in so many questions, so we will be solving the equation. This 8 will be multiplied with x and this 8 will be multiplied with minus 5 by 2 both. Keep it in mind because generally students multiply this 8 with only one number. So when 8 multiplied by x, it will give you 8x. Here it will give you 2 multiply 2 and 8 will get reduced. So 2 ones are 2, 2 fours are 8. So 4 fives are 20. So 8x is minus 20 is equals to 3x. So we will take 3x this side and 20 will take to the right hand side. That will change the sign. That ax में 3x को हम इधर लाए तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस 20 को राइट साइड पर लेके गए हैं तो वो प्लस 20 हो जाएगा. So 8x minus 3x सेम वेरिएबल में आ गए. So it will be 5x plus 5x is equals to 20 और 5 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट साइड इट विल ट्रांसपोज एंड गेट डिवाइडेड. So x is 20.5, that is 4. So the number Amina thought of was 4. You have to always write the line of thus. Thus the required number is 4. I hope this is clear to you well. If you have any query, we can discuss it in class once again. Question number 2 said a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers become twice the other new number. What are the numbers? So again, we'll keep writing one step and reading on the question. First of all, we let the positive number to be x. Then other number he said in the question is 5 by x, 5 into x. Because what he said is a positive number is 5 times another number. So we thought one number to be x and we assumed the other number to be 5x. Then he said if 21 is added to both the numbers, so this is a condition 1 कि x एक नंबर है 5x एक नंबर है, दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया. तो हुआ क्या 21 ऐड करने पर? Then one of the new numbers becomes twice the other new number. जो one of the new numbers है, जो एक न्यू नंबर है वो दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा. आपके अकॉर्डिंग इसमें से विच इज द बिगर नंबर, x प्लस 21 और 5x प्लस 21? ऑफ कोर्स 5x प्लस 21 बड़ा होगा. तो वो बिगर नंबर या न्यू नंबर जो बना है हमारा वो इक्वल होगा जो ओरिजिनल नंबर था उसके डबल के, उसके ट्वाइस के. सो इससे हमने इक्वेशन बनाई कि जो न्यू नंबर है 5x प्लस 21 वो इक्वल होगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस 21 बिकॉज वो ओरिजिनल नंबर के ट्वाइस पूरे के साथ आएगा. Then you will be multiplying this 2 with both the numbers in the bracket. The first is 2x and the other one is 2 into 21 will give you 42. So now in this equation take x to be on one side and variables to be on the another side. 2x को लेफ्ट में लाएंगे माइनस हो जाएगा और 21 प्लस का है उसको राइट साइड में ले जाएंगे माइनस होगा. तो 5x minus 2x is equals to 42 minus 21.
5x minus 2x will be giving you 3x, and 42 minus 21 will be giving you 21. So 3x is 21, x is equals to 21 upon 3, and x you will be getting as 7. So the one number is 7, and the other number we assumed is 5 times another number, 5x, that is 5 into 7, that is 35. Thus the two numbers are 7 and 35. Okay, let's move to the next question. Sum of the digits of a two-digit number is 9. Now this is something new for you. कोई भी अगर हम एक टू डिजिट का नंबर लेते हैं तो उसका सम है 9. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर लिया 45, सो 4 प्लस 5 इज 9. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर नंबर हुज सम ऑफ डिजिट्स इज 9? देयर आर मेनी नंबर्स लाइक 54, 5 प्लस 4 इज 9. उनकी दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 आना चाहिए. 18, 81, 27, 72, and there are so many other numbers like that. He said when we interchange the digits, like जो वंस प्लेस पर है उसको टेंस पे करा और जो टेंस प्लेस पर है उसको वंस प्लेस पर करा, तो it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. कि अगर हमने इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को तो जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होगा. सो व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? लाइक 45 और 44, 54 हम ले तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है. सिमिलरली जो दो नंबर्स बनेंगे, दो ही बातें बता रहा है वो. एक तो दोनों डिजिट्स का सम आएगा 9, एंड द अदर कंडीशन इज गिविंग इज कि जो दो नंबर्स हैं उनमें 27 का डिफरेंस है. तो हमें वो टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम यूनिट्स डिजिट पर मानेंगे कि x है, और टेंस डिजिट जो हो जाएगी वो होगी 9 माइनस एक्स. वाई इट इज 9 माइनस एक्स? क्योंकि अगर हमारी दोनों डिजिट्स का सम है 9, अगर हमारा पहला नंबर है x यूनिट्स डिजिट पर, तो हम टेंस डिजिट पर कोई भी नंबर लें उनका सम दोनों का 9 आ रहा है, तो दूसरा नंबर जो हमने निकालना है टेंस प्लेस पर वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स. गॉट माई पॉइंट? वैसे मैंने मतलब x मैंने इधर लिख दिया. if you'll take it units and tens, then x will come on the right side. I was just taking two numbers. ये हमने यूनिट डिजिट पर लिया है अभी x, और टेंस डिजिट हमने t लिखा, तो t की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो वो हो जाएगी 9 माइनस एक्स. ओके, ये भी हमारा ओरिजिनल नंबर है. तो ओरिजिनल नंबर जब हम लिखते हैं, suppose if my number is 54, how can I write this 54? जो टेंस प्लेस पर है नंबर उसको मैं लिख दूंगी 5 into 10 like its expanded form. तो उस तरीके से हम ओरिजिनल नंबर फॉर्म करेंगे विद द यूनिट्स. 5 into 10 plus, this is plus sign, plus 4. Because to write tens digit we will write it like this: 10 multiplied by tens place digit and plus units digit. सो ओरिजिनल नंबर कम्स 10 को मल्टीप्लाई करा जो हमारा टेंस प्लेस पर था 9 माइनस एक्स, और प्लस करा उसमें जो हमारा यूनिट्स प्लेस था x. ओके, अब हमारा नंबर इंटरचेंज हो गया हमारी डिजिट्स. तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट्स प्लेस पर था अब हमारा वो टेंस प्लेस पर आ गया, और टेंस प्लेस वाला यूनिट्स प्लेस पर. तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, और प्लस करेंगे जो यूनिट डिजिट अब हो गई, जो पहले टेंस डिजिट थी वो बन गई अब हमारी यूनिट डिजिट, that is 9 minus x, and this is our x is our tens place. अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर भी आ गया और इंटरचेंज नंबर भी आ गया. अब हम इनको चाहें तो ब्रैकेट्स के साथ यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स कंप्लीटली अप टू अस. अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन के लिए उसने एक कंडीशन दी थी कि, दोबारा पढ़िए, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. जो आपका resulting new number है वो greater है 27 by the original number. So we will form an equation according to this situation. He said new number हमारा equal है original number में 27 plus करेंगे तो. अब new number की जगह पर हम लिख देंगे this 10x plus 9 minus x और is equals to ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, वो यहाँ ऊपर से देखिए
चाहे इसमें पहले x लिख दिया या पहले बाद में लिख दिया, डज नॉट मैटर, इट्स एडिशन. तो 10 in bracket 9 plus x is plus 27. Now we'll solve this brackets first of all. 10x plus 9 minus x. There is nothing to multiply with this bracket, so it is same. Is equals to x plus 10 into 9 is 90 and 10 into minus x will give you minus 10x plus 27. Now we'll take x on one side and all numbers on another side. 10x है, ये माइनस 10x इधर आके प्लस 10x हो जाएगा, तो 10x प्लस 10x हो जाएगा 20x और ये माइनस x इधर आके हो जाएगा माइनस x, तो दोनों माइनस x. तो we'll get 9x because one here 10x और एक माइनस x था और यहाँ भी एक 10x और एक x था, तो उनको सॉल्व करके 9x आ गया. वी हैव फर्स्ट सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो भी x थे और नंबर्स थे. Now this minus 9x will come to left side and will give you 9x plus 9x, and this plus 9 will go to right hand side, will give you minus 9. 9x plus 9x is now 18x and 117 minus 9 is 108, that is 108. Now 18 multiply हो रहा है तो right side पर जाकर divide हो जाएगा, and on dividing 108 with 18 you will be getting 6 if you remember the tables. So the value of x is 6. हमने x assume किसको किया था? We assumed x to be units digit. तो अगर हमारी unit digit x है 6, so our tens digit would be 9 minus x assume करी थी हमने, that is 9 minus 6, that would be 3. So our number formed is 36. Either you can put the values in the जो original number हमने बनाया था, or else you can see directly कि tens digit पर 3 है और unit digit पर 6 है. The number is 36. Now you can see that check also कि आपने जो conditions मानी थी, is it fulfilling that? The condition was कि एक तो number changing में 27 का difference होगा, तो 36 और interchange digit होगी 63. So when you subtract 63 and 36, you will be getting 27. Also, he said the sum of the digits would be 9. So 3 plus 6 is 9. So I hope this is clear to you well. This type of question is very important. Number digits wale and age wale, these are very important questions which will be with you till class 10th even. 9 10 दोनों में आएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन. So please get it thorough. अगर कोई डाउट है तो अच्छे से क्लास में इसको क्लियर करिए. Let's move to question now. Now this is an age question. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. शोबो की जो मदर है वो 6 टाइम्स शोबो की प्रेजेंट एज है. मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज हैव टू अज्यूम द प्रेजेंट एजेस, एंड देन ही इज सेइंग शोबो's एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो पहले हम लेट करेंगे दोनों की प्रेजेंट एजेस और फिर 5 years के बाद की उनकी एजेस निकालेंगे, और जो उनकी 5 year की बाद की एजेस आएंगी उनमें उसको 1/3 की इक्वेशन से प्रिपेयर करेंगे इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे शोबो की प्रेजेंट एज को x years और शोबो की मदर की एज होगी 6x years. क्यों? बिकॉज शी सेड शोबो's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोबो's प्रेजेंट एज. सो उसकी मम्मी 6 times है उसकी एज से. So Shobo's mother's age would be 6 years, 6x years, because 6 times means x multiplied by 6. Now he's saying Shobo's age after 5 years. So 5 years के बाद शोबो की एज हो जाएगी x plus 5. अब हम इसमें मदर की एज 5 years के बाद की नहीं निकालेंगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि शोबो की एज जो 5 years फ्रॉम नाउ है दैट विल बी इक्वल टू 1/3. किसकी 1/3 की एज है? मदर की प्रेजेंट एज की. तो मदर की एज 5 years के बाद निकालने की कोई नीड ही नहीं है. तो इट्स वेरी सिंपल कि 5 years के बाद जो एज है शोबो की x plus 5 वो इक्वल है किसके? 1/3 1/3 मल्टीप्लाई जो मदर की प्रेजेंट एज है, और मदर की प्रेजेंट एज है 6x. ओके,
So this is the equation form. Now we can solve it very easily. सबसे पहले तो ये 3 और 6 आपस में रिड्यूस हो जाएंगे. I'll show you. 3 ones are 3 and 3 twos are 6. So x plus 5 is equals to 2x आ गया. अब चाहे तो आप x को डायरेक्टली इस साइड पर ले आइए, बिकॉज 2x उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, फिर माइनस रिड्यूस करेंगे. सो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 5 आ गया. 2x माइनस x इज x आ गया आपका 5. तो ये आपकी x क्या था? दैट वाज शोभोज प्रेजेंट एज, x इयर्स था. तो यानी कि जो x आया है हमारा वो शोभो की प्रेजेंट एज आ गई. बट वी हैव टू फाइंड शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, दैट इज 6 into x. तो शोभो की प्रेजेंट एज हो गई 5 years और मदर की प्रेजेंट एज हो गई 6 into 5, दैट इज 30 years. आपको ये समझ में आ गया 5 कहाँ से आया? This is the value of x because 6 and x are multiplying with each other. So I hope this question is clear to you well. Let's move to. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. There is a plot which is rectangular in shape. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. तो अगर आपको लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दे रखी है 11:4, तो this way we can assume the length to be 11x and breadth to be 4x. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat at rupees 75,000 to fence the plot. You all remember what is fencing? When we make a boundary outside the plot, that is called fencing. And for fencing, we always use its perimeter, not area, if you remember. तो वो क्वेश्चन में ये समझा रहा है कि विलेज पंचायत को उसके चारों तरफ फेंसिंग करने पर 75,000 रुपीज लग गए. जो किस रेट के हिसाब से लगे? रुपीज 100 पर मीटर के हिसाब से. मीन्स पर मीटर 1 मीटर की कॉस्ट उसमें आपकी लगी थी रुपीज 100. तो 75,000 रुपीज टोटल लगे हैं. तो आप इसमें उसका फेंसिंग का लेंथ भी निकाल सकते हैं. आपको निकालना है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेथ. So first of all, we will assume the length and breadth to be 11x and 4x meter, as I told you earlier. Rate of fencing per meter है, 1 मीटर की कॉस्ट है 100 रुपीज और टोटल कॉस्ट है 75,000 रुपीज. तो कितनी लैंड पर फेंसिंग हुई है वो हम निकाल सकते हैं. वो उसके लिए पेरीमीटर के इक्वल आएगा. और पेरीमीटर ऑफ प्लॉट किसके इक्वल होता है? 2 in bracket लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसमें हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट करेंगे 11x प्लस 4x. 11x प्लस 4x आ जाएगा आपका 15x इंटू 2 दैट वुड बी 30x. ये हमारे अकॉर्डिंग x लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग हमारा ये पेरीमीटर है जिसमें हम फेंसिंग कर रहे हैं. और 1 मीटर फेंस, अब स्टेटमेंट कैसे बनेगी कि 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट थी 100 रुपीज. तो 30x को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग. क्योंकि ये हमारी लेंथ है 30x और 100 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट है, तो हमारे अकॉर्डिंग फेंसिंग की ये अमाउंट बनेगा. बट अकॉर्डिंग टू हिम द अमाउंट ऑफ फेंसिंग इज 75,000. So it means that this amount that we have received and the given amount would be equal. So 30x into 100 is 75,000. So this is your equation. Now we will be solving the equation to find the value of x. 100 multiply हो रहा है, so it will get divide. So here I have multiplied, or else you can directly divide 100 with 75,000. इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप डिवाइड करेंगे 3000 से वन टाइम ओनली. तो पहले तो 30 से 30 रिड्यूस हो गई. देन 75 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 25. सो x आया आपका 25. And if your x is 25, that was assumed not length, not breadth. Your length was 11x and 4x. So length is 11 into x. x की वैल्यू है 25 मीटर. तो 11 को 25 से मल्टीप्लाई करके आया 275 मीटर. और ब्रेथ जो 4x थी वो आ गई 4 into 25 मीटर, दैट इज 100 मीटर. So the length and breadth of the plot is 275 meter and 100 meter. And according to questions, he asked
the language is dimensions of the plot. So that is 275 meter by 100 meter. Is that clear to you, everybody? Let's come to next question. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform. दो तरीके की हसन ने क्लोथ मटेरियल खरीदा है. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर खरीदा है जो ₹90 पर मीटर के हिसाब से खरीदा है. शर्ट हसन है, उसने दो तरह का कपड़ा खरीदा है जिसमें जो कॉस्ट ऑफ शर्ट है वो ₹50 पर मीटर है और जो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर है वो ₹90 पर मीटर है. ओके, अब उसने कितना कपड़ा खरीदा है पे डिपेंड करता है कि कितना कॉस्ट आएगी उसकी. सो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे. फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ दी शर्ट, 3 मीटर जब वो शर्ट खरीद रहा है उसके लिए वो 2 मीटर ट्राउजर खरीद रहा है. ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% के प्रॉफिट पर उसको सेल कर रहा है. तो उसकी टोटल सेल है ₹36,000 हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, वो कितना ट्राउजर का मटेरियल परचेज कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो ऑफ शर्ट मटेरियल, जो वो ट्राउजर और शर्ट की जो रेशो है वो ले रहा है 3:2 कि अगर 3 मीटर शर्ट खरीदी है तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए ही इज परचेसिंग द क्लोथ. सो शर्ट मटेरियल बॉट वुड बी 3x एंड ट्राउजर मटेरियल बॉट वुड बी 2x. अब कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल क्या होगा, अगर 1 मीटर शर्ट की कॉस्ट है ₹50, तो जितना उसने कपड़ा खरीदा तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 50 into 3x because 50 is the cost of 1 meter cloth and 3x is the cost of 3x is not the cost, 3x is the length of the cloth purchased for the shirt. So the cost of shirt material is 50 into 3x, that is 150x. Then cost of trouser material would be 90 into 2x because the cost of 1 meter cloth is 90 and 2x meter he has purchased. So that would be 180x. Then selling price of shirt material. अब ये तो उसने इतने में खरीद लिया. Now he is selling the things. So while selling the things, पहले we will find out the selling price of shirt material and then we'll find the selling price of trouser material. Selling price में if you remember the formulas, SP is equals to CP plus profit होता है, क्योंकि जितने में वो बेच रहा है उसमें पहले तो उसकी कॉस्ट प्राइस लगाएंगे. तो शर्ट की कॉस्ट प्राइस है 150x, वो लिखेंगे, प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 12%. तो 12% दैट इज 12/100, लेकिन 12% किस पर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर. तो 150x into 12/100, this is profit. I hope you get it in one equation only. This is profit 150 into 2x. ये आपको प्रॉफिट निकालना है जो सीपी पर निकलेगा. 150x को 12/100 सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आया और ये आपका सीपी है. सो आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. नाउ सॉल्व इट. जितना हो रहा है यहाँ पे 150x, इसमें ये 0 से 0 कट गई एंड देन 3 5s are 15, no 5 3s are 15 and 5 2s are 10 and then 2 1s are 2, 2 6s are 12. तो ये आपके पास बचा 3 into 6 3x. So 3 6s are 18x. So 150x plus 18x will give you 168x. This is the SP of the shirt material. In similar way we will find the selling price of trouser material. तो उसके लिए आप यहीं पे पहले देख लीजिए, उसमें हम सीपी डालेंगे ट्राउजर का 180x, प्लस करेंगे उसमें प्रॉफिट 180x मल्टीप्लाई 10% है और टोटल सेल अभी आपको दे रखी है. तो आप शर्ट की और ट्राउजर की दोनों सेल को ऐड कर देंगे और उसको 36,600 के इक्वल रख देंगे टू फॉर्म दी इक्वेशन. और आपसे पूछा सिर्फ ये गया है कि ट्राउजर मटेरियल कितना उसने परचेज किया है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल एज आई टोल्ड 180x जो उसका कॉस्ट प्राइस है प्लस जो उस पर प्रॉफिट हो रहा है. इसमें ये 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगी एंड दिस 0 विल गेट रिड्यूस विद दिस. So you will be left with 18x. So 180x plus 18x would be 198x. So on adding
both selling price of shirt and selling price of trouser 168x plus 198x आपको इक्वल आएगी। जो आपकी कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस की जो दे रखी है 36,600। so we'll be adding this 366x is equals to 36,600। 366 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 100। So length of trouser material bought is equals to 2 into 100 meter, that is 200 meter, क्योंकि हमें सिर्फ trouser की ही लेंथ निकालनी थी। Thus Hassan bought 200 meter of trouser material. I hope this question is now clear to you well. If not, just go through it once again because it was a little long question for you. Revise it once again in the video and do write it, try to write it on your own once. Okay. The next question of the video. This is the last question of this video. Half of a herd of deer are grazing in the field. If you have remembered your English grammar work, what is a herd? Herd is the group of deer or animals. So some deer are grazing in the field. जो total deer है, मान लो हमारे पास 100 deers हैं, तो उसमें से half of a herd of deer are grazing in the field. तो अगर हमारे पास 100 deer है, हाफ हो गया उसका 50, तो 50 यानी 1/2 वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में। ओके, एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो जो बचे हैं, अगर हमारे 50 यूज हो रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, तो बचे कितने हैं पहले वो निकालेंगे। द लेफ्ट वंस आर अगेन 50, तो जो 50 बचे हैं उसका 1/3 यानी कि 50 इंटू 1/3 अगर हम करें, वो नियर बाय प्ले कर रहे हैं। और उसके अलावा द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बचे हैं दैट आर 9। find the number of deer in the herd. This is a very interesting question. First of all, you will be assuming that the number of deer in the herd would be x. अब तीन चीजें इसमें ऐड करेंगे तो वो x के इक्वल आएंगी। सबसे पहले हाफ ऑफ द हर्ड आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो यानी कि 1/2x डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। उसके बाद जो बचे वो भी 1/2 ही बचे, तो 1/2x जो हमारे अभी बचे हैं उनका 1/3। पहले तो हम ये निकालेंगे रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास कितने हैं। तो हमारे पास टोटल थे x डियर, और उसमें से x - 2 माइनस करेंगे तो वो x/2 ही आएगा। एज आई टोल्ड यू कि 100 डियर्स टोटल है और 50 ग्रेज कर रहे हैं, सो 50 विल बी लेफ्ट ओनली। और अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी x/2 ही आएगा। तो ये हमारे पास रिमेनिंग डियर है। अब इस रिमेनिंग डियर में सेकेंड इक्वेशन पर आइए, that 3/4 of the remaining are playing nearby. So how many are playing nearby? जो x/2 है बचे हुए उनका 3/4, तो उनका 3/4 निकालने के लिए we will multiply. So x/2 multiply 3/4 is equals to, इसको सॉल्व करेंगे, so 3x upon 8. So 3x upon 8 डियर जो है वो नियर बाय प्ले कर रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द डियर बचे हैं कितने, वो है 9। तो तीन कैटेगरीज हो गई, ग्रेजिंग वाले x/2, सेकंड इज प्लेइंग नियर बाय इज 3x/8, एंड द थर्ड कैटेगरी इज दोज हु आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड रेस्ट, दैट इज गिवन ऑलरेडी 9। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या आएंगे, दैट इज x, जो हमने अज्यूम करा था कि लेट द नंबर ऑफ डियर टू बी x, कि वो डियर तीन जगह पर डिवाइडेड हैं। द डियर्स आर डिवाइडेड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। अगर हमें उन तीनों का नंबर पता है, चाहे वो x की फॉर्म में ही पता है, तो हम उन तीनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा टोटल नंबर ऑफ डियर्स के, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर्म्ड, बेसिक मेन इक्वेशन फॉर्म। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग ऑल x ऑन वन साइड, और एल्स लाइक एलसीएम होता है 8, तो हमने सब टर्म्स को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट दिस 8 all denominators will be banished, or else you can do it like x upon 2 plus 3x upon 8, और उस x को अगर आप इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा आपका -x, और आप 9 को उस साइड पर ले जाएंगे तो वो आपका आ जाएगा -9। नाउ यू विल बी टेकिंग द एलसीएम। अगर अभी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी आगे कि ये सब कट कर कैसे सॉल्व होगा और एलसीएम से कैसे सॉल्व होगा। अगर हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 8
और 2 4s are 8, so 4 into x is 4x. Next is 8 divided by 8 is 1. 1 multiplied by 3x will give you 3x. And minus x ko we will be assuming it to be 1 in denominator. So 1 into 8 is 8. And 8 multiplied by x will give you 8x is equals to minus 9. Now minus left side पर देखिए 4x plus 3 7x 7x minus 8x that will give you minus x. तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 9 और जो 8 अब यहाँ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा. सो 9 8 72 माइनस से माइनस कट जाएगा तो x आ गया हमारा 9 8 72. दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन वन साइड. और वीडियो में यहाँ पर जो आपको रिप्रेजेंट करा है वो मैंने अनदर वे करा है जिसमें सबसे पहले ये सारे 8 हमने पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 2 into 2 4s are 8, इसमें 8 से 8 कट जाएगा तो ये आपको मिलेगा 4 into x is 4x plus 3x plus 72 is equals to 8x. You can use either this method or this method, anyone you can, no problem. इसका आंसर 72 आया. Let's see the left hand. So 4x plus 3x plus 72 is equals to 8x जो हमने अभी पिछले में करा उसको सॉल्व करके ये आया. And then 7x plus 72 is equals to 8x. 7x को आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो minus 7x हो जाएगा. 8x minus 7x will give you x and that is equals to 72. This is not 12. That is, I guess I have written by mistake, I have written it to be 12. But hence the required number of the deer is, let me correct it for you so that you won't get confused. This is 72, not 12. Okay. Hence the required number of deer is 72. So I hope this is clear to you well. So keep revising the exercise and do try the rest of the questions on your own once, and we will be having a discussion on it in the session. Till then, take care of yourself. Bye bye.